Hello everyone. So in this video I'm going to explain you the skill enhancement course Personal Financial Planning semester 1 first year Delhi University students. The syllabus for this is first unit is Introduction to Financial Planning, in which you will study all these steps, financial goals to funds and all. And unit 2 is Investment Planning, in which we will discuss all these things. And unit 3 is Personal Tax Planning. Unit 4 is Insurance Planning, and at last unit 5 Retirement Benefits Planning. So I will cover all these units in this video and explain you briefly. And this notes covers all these 5 units briefly and sufficiently, so that you can score very good in your examination of skill enhancement course Personal Financial Planning. Okay, the examination for this subject is on 10th of March and I'm uploading this video on 6th of March. So I request you to share this as much as possible in your class groups, so that those who have opted for this skill enhancement course of Personal Financial Planning can access this video and take advantage and take out the notes and watch this video, because a lot of effort has been put in making these notes. I have spent a lot of time researching and making this PDF, so I hope you guys understand. So without a further delay, let's get started to the explaining part. So unit first, we have Introduction to Financial Planning. Okay, so financial planning is the process of managing your finances to achieve your life goals. It involves assessing your current financial situations, setting your goals for future, and developing a plan to achieve those goals. It's very simple that financial knowledge is very important for all of you. That's why it is introduced in the course curriculum. And financial planning क्या होता है? इज प्रोसेस है, सिर्फ एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हो और उसके जरिए आप अपने लाइफ के जो भी गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स, उसको आप अचीव करते हो। जिसमें आपको इस प्रोसेस में आपको क्या करना होता है, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का एक्सेस करना पड़ता है, असेसमेंट करना पड़ता है। फिर आप क्या गोल्स सेट करते हो फ्यूचर के लिए और एक प्लान तैयार करते हो उस गोल्स को अचीव करने के लिए। ये सारे जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आते हैं। वाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? Financial planning is important because it helps you achieve your life goals by managing your finances in a responsible and effective way. It can help you save for retirement, pay for your children's education, buy a house or achieve financial security. तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इससे अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो एक प्रैक्टिकली रिस्पॉन्सिबल और इफेक्टिव वे के थ्रू। इससे आप अपने मनी को सेव कर सकते हो। रिटायरमेंट के बाद आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी आपके पास। आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए सिक्योर कर सकते हो फंड्स। आप कुछ नया खरीदना चाहते हो, गाड़ी, घर, कुछ भी चीज़, तो उनके लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप उन सभी गोल्स को, छोटे बड़े या फिर मीडियम जो भी गोल्स हैं आपके, चाहे वो गाड़ी खरीदना हो या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी सिक्योर करना हो या फिर जो भी चीज़ें हो, इन सब गोल्स को आप अचीव कर पाओगे थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to do financial planning. Financial planning also help you manage financial risk by creating a safety net for unexpected events such as job loss, illness or death. It can also help you manage debt and reduce financial stress. फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है बिकॉज अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग होगा, आपने पहले से फाइनेंस को प्लान कर रखा है, तो आपके पास जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो लाइफ में कभी कभी हो जाती है, सच एज एक्सीडेंट्स हो गए, इलनेस हो गई, इनफैक्ट डेथ जैसे सिचुएशंस में भी अगर आपने पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, तो आपके पास सम अमाउंट होगा जो सेव्ड होगा एंड उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है, आपके फैमिली की काफ़ी हेल्प हो सकती है। ठीक है, और इससे आप जो कभी भी आप कर्ज में नहीं जा पाओगे बिकॉज आपके पास पहले से इतना सफिशिएंट सेव्ड मनी होगा और आपके पास कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं रहेगा अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो। ठीक है, अब इसके क्या प्रोसेस है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें हम? तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप है एसेस योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। सबसे पहले आपके करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का असेसमेंट करना है। दिस इन्वॉल्व्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज। इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि आप कितना अर्न कर रहे हो, फिर आप कितना स्पेंड कर रहे हो, क्या आपके पास एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं। दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप इज सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। इसके बाद क्या करना है, दिस इन्वॉल्व द अपने गोल को सेट करना है, फाइनेंशियल गोल को। इसमें क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर जो भी मीडियम टर्म गोल्स हैं उनको आपको डिटरमाइन करना है। दिस गोल्स शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो ये गोल्स ऐसे ही आंख बंद करके नहीं आपको सेट करना है। ये गोल्स जो होने चाहिए वो अचीवेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, बिल्कुल रिलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। जैसे कि एज ए स्टूडेंट मैं अगर कुछ मेरे पास अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है सच जैसे कि मैं कोई इंटर्नशिप कर रहा हूँ एंड मुझे
एक सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है उससे, और मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और फ्यूचर में मैंने अपने मतलब क्या किया, इसको स्टेप्स को फॉलो किया, मैंने अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज किया, क्या मेरे एक्सपेंसेस हैं, क्या मेरी अर्निंग है, फिर मैं एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप में अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करने जा रहा हूँ। तो उसमें मैं एक ऐसा गोल सेट करूंगा जो कि रिलेवेंट हो, अचीवेबल हो, मेजरेबल हो, टाइम बाउंड हो। जैसे कि मैं एक गोल सेट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर में मैं अपने जो फीस है वो खुद पे करूंगा, या फिर ऐसी कुछ चीजें सेट कर सकता हूँ छोटे मोटे ऐसे जो भी मेरे अचीवेबल हो, टाइम बाउंड हो, रिलेवेंट हो, मेरे अर्निंग और एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, ये सब चीजें उसी तरह से मैं सेट कर सकता हूँ गोल। ठीक है, तो मैंने ये जस्ट एग्जांपल दिया, ये छोटे लेवल पे एग्जांपल दिया, आप इसको बड़े लेवल पे भी सोच सकते हो अगर आप एक अर्निंग अर्न कर रहे हो, एक जॉब कर रहे हो तो। ठीक है, थर्ड स्टेप करना होगा आपको डेवलप ए प्लान। तो जैसे ही आप अपने गोल को सेट कर लिया कि हाँ मेरा ये गोल है, उसके बाद आपने एक प्लान डेवलप करना है। दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए प्लान टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। द प्लान शुड इंक्लूड स्ट्रेटजीज फॉर सेविंग, इन्वेस्टिंग, मैनेजिंग डेब्ट एंड मैनेजिंग रिस्क। तो इस प्लान में आपको क्या करना होगा, अपने सेविंग्स के स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, कैसे आप इन्वेस्ट करके और एक्स्ट्रा अर्न करोगे, कैसे जो भी आपकी डेब्ट है उसको मैनेज करोगे, और रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा इस प्लान में, कि अगर इसमें रिस्क हो गया तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। इन चीजों के बारे में इस प्लान में डिस्कस करना पड़ेगा आपको। फोर्थ स्टेप क्या करना होगा, इंप्लीमेंट द प्लान। जैसे आपने अपना प्लान डेवलप कर लिया तो उस प्लान को इंप्लीमेंट करना होगा, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इन्वॉल्व्स पुटिंग योर प्लान इनटू एक्शन। अपने प्लान को आपको एक्शन में लाना होगा। दिस मे इन्वॉल्व मेकिंग चेंजेस टू योर स्पेंडिंग हैबिट्स, इंक्रीजिंग योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या आ सकती हैं चीजें, जैसे कि अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को आपको चेंज करना होगा। जो आप पहले एक्स्ट्रा फालतू स्पेंड करते थे चीजों पे, वो कम करनी पड़ेंगी। सेविंग्स को बढ़ानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको किसी भी जो भी सुटेबल सोर्स फाइनेंशियल चीजें हैं वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, और फिफ्थ और लास्ट स्टेप है मॉनिटर एंड रिव्यू। तो इसमें क्या करना होगा, दिस इन्वॉल्व्स रेगुलरली रिव्यूइंग योर फाइनेंशियल प्लान एंड मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड। दिस हेल्प यू स्टे ऑन ट्रैक टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। तो मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कि आप अपने ट्रैक पे रहोगे एंड आपने जो भी अपने गोल सेट किया था उसको आप अचीव कर पाओगे इन द टाइम यू हैव बॉन्डेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल गोल्स आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दैट यू वांट टू अचीव थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग. The primary aim of this setting financial goal is to ensure that an individual or a company has a clear path towards financial stability, growth and success. फाइनेंशियल गोल जो है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को करके उसको अचीव कर सकते हो अपने गोल्स को। एक कोई भी पाथ होता है आपका, क्लियर पाथ होता है। कोई भी इंडिविजुअल या फिर कंपनी जो है एक फाइनेंशियल सेट करके गोल एक क्लियर पाथ देखता है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे अचीव करे, ग्रोथ कैसे उसे हो, कैसे उसे सक्सेस मिले। ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, मीडियम टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल गोल्स इंक्लूड बाइंग ए हाउस, सेविंग फॉर रिटायरमेंट, पेइंग ऑफ डेब्ट और सेविंग योर चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, द नीड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होते चल रहा होगा। एक थम्स अप जरूर कर देना अभी तक अगर आपने ये समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये वही स्टेप्स है, ये दोबारा मैंने लिख दिया बिकॉज इसको मैंने इंक्लूड किया था सीरियल वाइज में अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग फाइनेंशियल गोल, evaluating an individual financial status and developing a comprehensive plan to achieve these goals. The following are the steps involved in financial planning. तो ये कुछ 5 स्टेप्स हैं, जो कि सबसे पहला है असेसिंग द करंट फाइनेंशियल स्टेटस। क्या आपके खर्चे हैं, क्या लायबिलिटीज है, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या इनकम है, इनको असेस करना, असेसमेंट करना इनका। सेकेंड है सेट फाइनेंशियल गोल्स। जो भी आपके गोल्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, वो आपको गोल सेट करना है। थर्ड नंबर पे आपको एक प्लान, फाइनेंशियल प्लान डेवलप करना है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसमें सारी चीजें हो मेंशन्ड। फिर उस प्लान को आपको इम्प्लीमेंट करना है एंड फिर उसको मॉनिटर करते रहना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, और फिर जिससे कि आप अचीव कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बजटिंग, इनकम्स एंड पेमेंट्स। तो बजटिंग क्या है? बजटिंग इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. इट इन्वॉल्व्स द ट्रैकिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस टू ensure that an individual or a company is living within their means. कहने का मतलब बजटिंग जो है एक कंपोनेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जिसमें आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हो, जिससे कि आप इंडिविजुअल या फिर आप एक कंपनी हो तो आपको पता चलेगा कि आप जो कर रहे हो, आप जो लिविंग जो आपका है वो बाय मीन्स, आपके मीन्स के लिए हो रहा है, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, आप जो अचीव करना चाहते हो आप कर रहे हो या नहीं, या फिर ऐसे ही वेस्ट जा रहा है आपका जो भी चीज़ है। ठीक है, तो ये एक ट्रैक करना हुआ, आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक करके आपको क्लियरली बताना कि हाँ आप सही जा रहे हो या नहीं, आपके जो एक्सपेंसेस जो है वो सही है या फिर प्लस है या माइनस है, जो भी चीज़ें हैं
वो सही हो रही है या नहीं, अपनी लिविंग जो है बाय देयर मीन्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बजटिंग इनकम्स एंड पेमेंट्स। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि आप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पहला है डिटरमाइन इनकम। सबसे पहला है कि आप अपने इनकम को डिटरमाइन करो, क्या क्या आपके इनकम के सोर्स हैं, ठीक है, जैसे कि सैलरी, बोनस, इन्वेस्टमेंट, अदर जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो सबको इसमें कैलकुलेट कर लो, अपने इनकम को डिटरमाइन कर लो। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंस को क्या करो, आइडेंटिफाई करो, जैसे कि मंथली एक्सपेंसेस हो गया, हाउसिंग हो गया, यूटिलिटी हो गया, ग्रोसरी हो गया, एंटरटेनमेंट एंड अदर जो भी एक्सपेंसेस हैं आपको उसको आप आइडेंटिफाई करो, नोट डाउन करो। थर्ड है प्रायोरिटाइज एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करो, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें आप एक्सपेंड करो, जैसे कि प्रायोरिटाइजिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्स कैटेगराइजिंग देम इनटू एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। दो कैटेगरी में आप अपने एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करो, पहला एसेंशियल, दूसरा नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वाले में आप जो भी चीजें रखोगे वो बिल्कुल एसेंशियल होगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। दूसरी वाली चीज है नॉन एसेंशियल, जिसमें कि घूमना फिरना, डाइनिंग, शॉपिंग, इंटरटेनमेंट, ये सब चीजें आती हैं, उसको आप नॉन एसेंशियल में रखो, उस पर आप कम खर्च करोगे। तो वही फोर्थ स्टेप आता है एलोकेट फंड्स। तो फोर्थ स्टेप में ये होगा, जब आपने अपने एक्सपेंस को प्रायोरिटाइज कर दिया तो आप उसके अकॉर्डिंगली फंड्स एलोकेट करोगे, मतलब आप जो है एसेंशियल चीजों पे खर्च करोगे, नॉन एसेंशियल चीजों पे खर्च कम करोगे या फिर नहीं करोगे, ठीक है। और फिफ्थ आता है मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट, मतलब आपको इसी को रेगुलरली मॉनिटर करना है और एडजस्ट करना है, जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, फाइनेंसिस को स्टेबिलिटी कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पे क्या है, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द प्रिंसिपल दैट द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड अदर फैक्टर्स। समय के साथ साथ जो वैल्यू होती है मनी की वो चेंज होती रहती है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो द बेसिक प्रिंसिपल इन दिस इज प्रिंसिपल इज एसेंशियल इन फाइनेंस एज इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अपने फ्यूचर के जो भी चीजें हैं उसको कैलकुलेट कर रहे हो, और कैश फ्लो को जो भी है उसको आप रेगुलेट कर रहे हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना जरूरी है, बिकॉज ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इन सब सारी चीजें हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू हो गया, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इज द वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इन टूडेज डॉलर्स, ठीक है। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है वो कैश फ्लो में चल रहा है और वो आज के डॉलर्स के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी इज द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में आप जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर में उसकी क्या चीजें होंगी, वैल्यू होगी, फ्यूचर में उसका क्या रेट होगा, वो फ्यूचर की बात हो गई, फ्यूचर वैल्यू उसको बोलेंगे। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट आर द रेट एट विच द लेंडर्स चार्ज बोरोअर्स फॉर द यूज ऑफ मनी। ये सबको पता होगा। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जैसे कि आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपको सर्टेन इंटरेस्ट रेट, सर्टेन रेट से इंटरेस्ट लिया जाता है, जैसे कि 4%, 3%, 5%। तो ये रेट हो गया जो कि इंटरेस्ट देने वाला चार्ज करता है इंटरेस्ट लेने वाले को, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज ओवर टाइम। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, ये हर एक साल जो है बढ़ती जाती है, ठीक है, क्योंकि जो गुड्स एंड प्राइसेस हैं उनकी प्राइसेस बढ़ती जाती है, उसी को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको महंगाई दर बोलते हैं, ये आपको पता होगा पहले से ही। अब आता है इंट्रोडक्शन टू सेविंग्स। सेविंग्स से आप क्या समझते हो, सबको पता होगा, पैसे बचाना सेविंग्स होता है। सेविंग्स इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग असाइड मनी फॉर फ्यूचर यूज। जो आप पैसे अर्न कर रहे हो उसमें से कुछ पैसे आप साइड में रख रहे हो, सेव कर रहे हो, जिससे कि फ्यूचर में आपके काम आए। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एज इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, बिकॉज इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को फ्यूचर में अचीव कर पाते हो, ठीक है। सम मनी हैज सेविंग मनी हैज बेनिफिट्स, सम ऑफ विच आर। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे सेविंग मनी के बेनिफिट्स दिए हैं, उसको आप देख लो। पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप मनी सेव करते हो, हैविंग सेविंग प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड हेल्प इंडिविजुअल्स टू कोप अप विद अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस सच एज मेडिकल इमरजेंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप मनी सेव करते हो तो आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ जियोगे। आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो कभी कभी हो जाते हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या फिर इलनेस या फिर जॉब लॉस, तो इन चीज़ों में आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास पैसे पहले से ही सेव्ड होंगे, तो आप आसानी से आप काम चला लोगे। सेकेंड है अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। Saving money help individuals to achieve their financial goals such as buying a house, saving for retirement और starting a business। तो आपके जो भी गोल्स हैं, या तो बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर एक घर खरीदना, एक गाड़ी खरीदना, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं वो तभी पूरे हो पाएंगे जब आप सेविंग करोगे, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है अर्निंग इंटरेस्ट। सेविंग्स आर डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट अर्न इंटरेस्ट। अगर आप पैसे जो है बैंक में डाल रहे हो, जमा कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, तो वहां पे सेविंग वाले अकाउंट में, तो फिर वहां पे आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से वहां पे इंटरेस्ट मिलता है और वो पैसे आपके जो है इंक्रीज होते हैं विद टाइम। तो वहां पे आप अर्न कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छी है चीज। फोर्थ है अवॉइडिंग डेप्ट। अगर आपने सेविंग कर रखी है, सेविंग कर रहे हो, तो हैविंग सेविंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू अवॉइड टेकिंग ऑन डेप्ट टू कवर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। तो आपको कर्ज लेने की या फिर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सेविंग पहले से कर रखी है। तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई, तो आप अपने सेविंग्स को यूटिलाइज करके उसको कोप अप कर सकते हो। आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, कर्ज लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ है पीस ऑफ माइंड। नोइंग दैट वन हैज सेविंग्स कैन प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड एंड रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपके पास सेविंग्स है, आप सेविंग्स कर रहे हो, तो आपके पास एक पीस ऑफ माइंड भी होगा, आपके पास एक माइंडसेट होगा कि यस यू आर सेविंग मनी। सो कभी भी आप ऐसे डर के माहौल में नहीं जियोगे। आपके पास पता होगा कि आप मनी सेव कर रहे हो, तो किसी सिचुएशन से आप निपटने के लिए तैयार हो। अदरवाइज जिसके पास मनी सेव नहीं है, उसके पास बिल्कुल भी मनी नहीं है, सेविंग नहीं करते हैं, उनके पास एक फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है कि वो आगे के खर्चे कैसे निकालेंगे। अगर कुछ एक्सीडेंटल या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, तो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है, तो वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ करते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों चीजों को समझते हैं। फाइनेंशियल स्पेंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग discipline are essential for achieving the financial goals. The financial discipline is the ability to control your spending habits. ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है? Is the ability to control your spending habits and make responsible financial decisions. आप अपने जो भी खर्च करने की जो आदतें हैं आपके, उसको आपको सही करना और एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल डिसीजन लेना। बिकॉज बहुत लोग एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा फालतू चीजों पे स्पेंड करते हैं, तो उन सब चीजों से बचने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो ये टॉपिक है वो आपके काम आएगा। आपको समझना होगा कि कैसे क्या स्पेंड करना है, क्या डिसिप्लिन जो है मेंटेन करनी है, कैसे आप स्पेंड करोगे और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले पाओगे, तो आपकी स्पेंडिंग्स भी कम होंगे, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम टिप्स फॉर मैनेजिंग स्पेंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग फाइनेंशियल। तो कुछ टिप्स यहाँ पे है जो कि आपको हेल्प करेंगे इन चीजों में, ठीक है। क्रिएट ए बजट। सबसे पहला काम आपको बजट क्रिएट करना होगा। क्रिएटिंग ए बजट एंड स्टिकिंग टू इट इट्स फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एक बजट तैयार कर लो का आप अपने स्पेंडिंग्स और खर्चे जो भी चीजें हैं उनका आप प्रॉपर लिस्ट बनाकर एक बजट तैयार करो और उसी बजट से स्टिक करके रहो, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा अवॉइड करोगे, आप अपने एक्स्ट्रा स्पेंडिंग्स को आप अवॉइड कर पाओगे, ठीक है। दूसरा है अवॉइड इम्पल्स बाइंग। Impulse buying can lead to overspending and can derail an individual's financial goals. To avoid impulse buying, individuals should make a list of necessary items and stick to it. आपकी क्या necessities जो है important है, उस पर ही आप स्पेंड करोगे। आप एक्स्ट्रा कुछ चीजें ना खरीदो जिससे कि वो आपके यूज में भी ज्यादा ना हो, और वो जैसे कि वो इम्पल्स बाइंग होता है, जैसे कि आप कभी शॉपिंग करने जा रहे हो तो कुछ ऐसी चीजें आप देख लेते हो, ऐसी चीजें जो है आप ना चाहते हो भी उसको खरीद लेते हो विदाउट, वो आपकी नेसेसिटी नहीं है फिर भी आप उसको खरीद रहे हो। तो इस टाइप से और भी चीजें हैं, बहुत सारी इसको चीजें हैं जिसको इम्पल्स बाइंग में आती है, जो कि अनवांटेडली आप खरीदते हो चीजों को, तो उसको अवॉइड करना है आपको, ठीक है। थर्ड है यूज कैश। यूजिंग कैश इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स कैन हेल्प इंडिविजुअल्स टू मैनेज देयर स्पेंडिंग्स एंड अवॉइड ओवर स्पेंडिंग। ये बिल्कुल आप एग्री करोगे इस बात से, बिकॉज कैश या फिर यूपीआई अगर आपके पास है, अभी तो सबके पास यूपीआई होता है, सब यूपीआई स्टूडेंट्स हैं हम लोग, तो यूपीआई से हर जगह पे करते हैं, तो आपको लगता है कि पेटीएम या फिर गूगल पे हमारा खुद का ही है, एंड हम अननेसेसरली बहुत जगह पे कर देते हैं चीजें, विदाउट सोचे समझे भी हम खरीद लेते हैं। तो इससे हमें अंदाजा नहीं रहता कि हमारे बैंक में कितने रुपए हैं और हम क्या खर्च कर रहे हैं। जबकि अगर आपके पास कैश होगा तो आप अपने वॉलेट में देखोगे, कुछ सामान खरीदने से पहले अपने वॉलेट चेक करोगे कि आप उसको खरीदना चाहते हो या फिर नहीं, या फिर मतलब एक डिसीजन बनाओगे आप। लेकिन यूपीआई और क्रेडिट कार्ड जो चीजें हैं वो आपको डिसीजन बहुत बनाने नहीं देती हैं, वो डायरेक्टली क्योंकि आप स्पेंड करते हो तुरंत ही आप उसमें अपना पिन डालते हो और स्पेंड कर देते हो, वो आपको डिसीजन बहुत लेने नहीं देता है, ठीक है। तो बट आप वाइजली यूज करो इन चीजों को, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। फोर्थ है अवॉइड डेप्ट। आपको डेप्ट जो है उससे अवॉइड करना है, कर्ज या फिर लोन जो है नहीं लेना है। आपको ट्राई करना है कि जो भी आपने ले रखा है वो आप धीरे धीरे उसे रिन्यू कर लो, उसे हटा लो, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन है जो सेव फर्स्ट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग फर्स्ट सेविंग व्हाट इज लेफ्ट। इंडिविजुअल शुड एम टू सेव फर्स्ट एंड देन स्पेंड व्हाट इज। सबसे पहले आपको जो भी इनकम है उसमें आप सेविंग का एक परसेंटेज रखो, जो भी आपने अर्न किया उसमें एक फिक्स अमाउंट जो है आप सेव करो, एंड जो लेफ्ट ओवर बचता है उसको आप स्पेंड करो। दैट इज द प्रॉपर आइडियोलॉजी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप। अब है नेक्स्ट टॉपिक सेटिंग अलर्ट्स एंड मेंटेनिंग सफिशिएंट फंड्स फॉर फिक्स्ड।
commitments. So setting alerts can help you stay on track with your financial goals by reminding you important deadlines and payments. Maintaining sufficient funds for fixed commitment involves setting aside money to pay for regular expenses such as rent, bills एंड लोन पेमेंट्स. तो आप ऐसा कर सकते हो कि अलर्ट सेट कर सकते हो जो भी आपकी फिक्स्ड कमिटमेंट्स, जैसे कि रेंट तो देना ही देना है, और भी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर और भी चीज़ें जो ऐसी फिक्स्ड कमिटमेंट्स है जो कि देना ही देना है, मंथली एक्सपेंसेस है, नेसेसरी है, तो उसके लिए आप अलर्ट सेट कर लो कि वो ओवर ड्यू ना हो जाए, वो लेट ना हो जाए. उसके लिए आप अलर्ट सेट कर सकते हो. ठीक है, और पहले से ही उतने फंड्स को आप साइड कर सकते हो. जैसे कि तो सम टिप्स हैं यहाँ पे. पहले रिमाइंडर सेट कर लो, जिससे कि आप जो भी रेंट वगैरह जो भी यूटिलिटी बिल्स हैं उन सबको आप पे करोगे टाइमली, जिससे कि ओवर आपको ड्यू ना आ जाए. ऑटोमेट कर दो पेमेंट्स. इन सब चीज़ों को जो कि चीज़ें आपको देनी ही देनी है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़िया हो जाएगा एंड उसकी आपकी टेंशन भी नहीं रहेगी. दूसरा, मेंटेन ए बफर. मेंटेनिंग ए बफर फंड कैन हेल्प इंडिविजुअल टू अवॉइड फाइनेंशियल स्ट्रेस. एक बफर अमाउंट जो भी समथिंग होना चाहिए जिससे कि कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको ना हो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में. प्लान अहेड. सबसे पहली बात की प्लानिंग करना है. कोई भी बजटिंग और फिक्स्ड कमिटमेंट करने से पहले आपको पहले से ही प्लानिंग करना है, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो और आप अच्छे से इंश्योर कर सको कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो रहे हो. ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट में आते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स. तो इस यूनिट को मैं कंटिन्यू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स और इस सेशन को उन्हें समझ में आ रहा है वो लाइक कर दे वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. बहुत मेहनत से मैंने इस नोट्स को तैयार किया है एंड बहुत इसमें टाइम भी लगा है इसमें. तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि जो ये मेरा मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जो स्टूडेंट्स को पहुंच जाएगा स्टूडेंट तक, तो वो एग्जाम्स में अच्छे स्कोर कर पाएंगे. तो दैट वुड बी वेरी ग्रेट. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो. अदरवाइज इतना कम टाइम में मैं इस वीडियो को नहीं करता, बट बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट्स एंड थिंग्स आई हैव मेड दिस वीडियो इन वेरी शॉर्ट टाइम एंड अपलोडिंग दिस. तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ही शेयर करें. फ्रेंड्स इन द सेंस अपने क्लास ग्रुप्स में, जो भी जिस कॉलेज से भी आप देख रहे हो, जिस जो भी कोर्स है आपका, अपने कॉलेज ग्रुप्स में आप इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में से शेयर करें, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो तक ये वीडियो पहुंच जाए एंड उन्हें भी इस नोट्स और वीडियो लेक्चर के थ्रू जो भी हेल्प हो पा रही है वो हो जाए. एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो. फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड डेवलपिंग ए प्लान टू अचीव दिस गोल्स. तो एक प्लानिंग के तहत हम अपने इन्वेस्टमेंट तरीकों को जानते हैं, एक फिक्स करते हैं गोल को एंड फिर उस प्लान पे हम लोग काम करते हैं. ठीक है, इन्वेस्टिंग कैन हेल्प इंडिविजुअल्स टू ग्रो देयर वेल्थ ओवर टाइम. इन्वेस्टमेंट से जो आपका वेल्थ है, जो आपकी मनी है, वो टाइम के साथ साथ बढ़ती है एंड अचीव देयर फाइनेंशियल गोल, और उससे आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाते हो. ठीक है, स्टेप्स क्या है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की उसको देख लेते हैं. और एक बात और बताना चाहता हूँ, जो भी ये नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं. इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो. चलिए अब स्टेप्स को फॉलो करते हैं. ठीक है, स्टेप्स इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में. तो पहला स्टेप है डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट गोल्स. द फर्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज टू डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट गोल्स. इंडिविजुअल्स शुड आइडेंटिफाई द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड डिटरमाइन हाउ मच मनी दे नीड टू अचीव दिस गोल. सबसे पहले तो आपको अपने गोल्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि किस टाइप की गोल्स है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कितने मनी जो है चाहिए उसको अचीव करने के लिए. ये सब गोल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है. दूसरा, एसेस रिस्क टॉलरेंस. रिस्क टॉलरेंस रेफर्स टू इंडिविजुअल्स विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्क व्हेन इन्वेस्टिंग. तो आपको सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट कहीं भी आप करोगे तो रिस्क होता ही होता है. तो आपको रिस्क टॉलरेंस को एसेस करना है, जिससे कि इसका मतलब ये हुआ कि आप कितना रिस्क सह सकते हो. अगर आप सर्टेन अमाउंट किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए पहले से कि अगर इसमें कुछ कंपनी डूब जाती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो आप कितना रिस्क सहने के लिए तैयार हो, जिससे कि आपके इनकम पे फिर आपके लाइफ पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े. तो उसी को बोलते हैं रिस्क टॉलरेंस. ठीक है, एंड चूज इन्वेस्टमेंट दैट अलाइन विद द रिस्क टॉलरेंस. और जो भी आप रिस्क टॉलरेंस एसेस करोगे और उसके हिसाब से आप ये प्लान करोगे कि कौन से जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो है आप उस रिस्क को सह सकोगे. अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके लिए आप तैयार रहोगे. ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप उस इन्वेस्टमेंट के चीज़ों को देख सकते हो, जैसे कि स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया. ये सब इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो. बट आपको देखना है कि आप, क्योंकि हर एक चीज़ में रिस्क इन्वॉल्व है, तो आपको ये देखना है कि आपके किस फील्ड में आप इन्वेस्ट करोगे और उसमें कितना रिस्क है और उसको आप सह सकते हो या फिर नहीं. ठीक है, किस में कम रिस्क है, किस में ज़्यादा रिस्क है, ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी होंगी.
थर्ड है डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। देयर आर वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट। बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको अपने एक नीड के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग चूज करना है कि कौन सा आप इन्वेस्ट करोगे। इंडिविजुअल्स शुड रिसर्च एंड इवेल्युएट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। आपको रिसर्च करना है, उसको इवेल्युएट करना है अपने अकॉर्डिंग, एंड फिर आपको अलाइन करे, जो भी आपके से मैच करे जो भी चीजें, उसमें आप देखोगे और इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। फोर्थ है डेवलप एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। जब ये सब कर लोगे आप, वंस इन्वेस्टेड गोल्स, आपका जब गोल तैयार है, रिस्क टॉलरेंस आपने कर रखा है और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी आपने डिटरमाइन कर रखे हैं, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। एंड इन्वेस्टमेंट प्लान शुड इंक्लूड ए पोर्टफोलियो, एलोकेशन स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सब चीजें आपको प्लान करनी है। और उसके बाद फिफ्थ है आपको इन्वेस्ट करके उसके बाद आपको मॉनिटर एंड एडजस्ट द इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्लान इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट प्लान इज ऑन ट्रैक टू अचीव द इन्वेस्टमेंट गोल्स। मॉनिटरिंग करना है, एडजस्ट करना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो ट्रैक पे है या नहीं, और अपने टाइम पे वो आपको कैसे इन्वेस्ट जो है, और इन्वेस्टमेंट जो आपको पे ऑफ करेगी या नहीं। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की? सबसे पहला कि अचीविंग फाइनेंशियल गोल। जो भी अपने अपने फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो कि कई बार इस वीडियो में मतलब बता ही चुका हूँ, कि चाहे वो अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए हो, या फिर एक घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर बिजनेस स्टार्ट करना हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें आपको उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है। दूसरा है वेल्थ एक्यूमुलेशन। वेल्थ मतलब आपकी मनी को ग्रो करेगा ये। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका मनी बढ़ेगा, ग्रो करेगा। ठीक है। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैन हेल्प इंडिविजुअल्स टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी। इससे क्या होगा, आप अपने इस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, जो स्टेप्स मैंने बताया, तो आप इसमें रिड्यूस हो जाएगा मनी लॉस करने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। बिकॉज प्रॉपर प्लानिंग और कर रहे हो हर एक चीज प्लानिंग के साथ, तो आपका रिस्क कम होगा। ठीक है। फोर्थ है टैक्स बेनिफिट्स। सम इन्वेस्टमेंट्स ऑफर टैक्स बेनिफिट्स सच एज टैक्स डिफर्ड ग्रोथ और टैक्स। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स जो ऑप्शंस हैं उसमें टैक्स बेनिफिट्स भी होता है, तो ये भी आपके पास बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इन्फ्लेशन से बचे रहोगे, बिकॉज आप अपने मनी को किसी न किसी कंपनी या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड वहां से क्या होगा, वो किसी यूज में जा रहा है और फिर आपको रिटर्न देगा विथ ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इन्फ्लेशन से आपको बचाएगा। ठीक है। प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट गोल्स, सेलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस and monitoring the performance of investment portfolio. The primary objective of investment are to generate income and grow wealth over time. तो primary objective क्या है इसका? इनकम जनरेट करना, एंड जो मनी आपका है, जो वेल्थ है आपको, ग्रो करे टाइम के साथ साथ। कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न एंड रिस्क फॉर वेरियस एसेट क्लासेस। ठीक है। तो देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे आप इन्वेस्टमेंट के बाद, तो वो उसको रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द एसेट क्लास। डिपेंड करता है किस चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। द मोस्ट कॉमन एसेट क्लासेस आर इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट। इन सब जगहों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और ये कॉमन चीजें हैं। ठीक है। द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच एसेट क्लास ऑल्सो वेरीज। हर एक एसेट के साथ जो रिस्क आता है वो वेरी करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क रेफर टू अनसर्टिनिटी ऑफ द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और जो ये रिस्क है इसमें क्या होता है, मतलब अनसर्टिनिटी भी होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी, ये सब रिस्क के कारण। ठीक है। जैसे कि अगर मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बाई चांस अगर 10 साल के बाद भूकंप आ जाता है और वो बिल्डिंग गिर जाती है, तो भाई उसमें तो फिर मेरा गड़बड़ हो गया। तो ये सब रिस्क है या नहीं है? तो हर एक चीज में रिस्क है, तो उसे भी समझना पड़ेगा। द मेजरमेंट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क फॉर वेरियस एसेट क्लासेस एसेंशियल इन सिलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर पोर्टफोलियो। तो आपको ये सब चीजें देख करके सिलेक्ट करना है। ठीक है। Measurement of portfolio risk and return. The measurement of portfolio risk and return involve analyzing the performance of the investment portfolio. The portfolio return is weighted average of the return on individual investment. Portfolio risk is the uncertainty associated with the portfolio return. The measurement of portfolio risk and return is essential in selecting the right investment and options for portfolio. I hope ये clear होगा। वही चीजें हैं, आपको चीजें मेजरमेंट करनी है, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से एनालाइज करना है, जिससे कि आपका रिस्क कम हो सके और आप अच्छे से आप इन्वेस्ट कर सको, अच्छा ऑप्शन आप चूज कर सको जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो फॉर्मेशन। डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन ए वैरायटी ऑफ एसेट्स क्लासेस टू रिड्यूस रिस्क। मतलब डिफरेंट एसेट्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको कम रिस्क होगा। पोर्टफोलियो फॉर्मेशन का मतलब होता है सिलेक्टिंग द राइट मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू अचीव इन्वेस्टमेंट गोल्स। मतलब
एक सही मिक्सचर जो है इन्वेस्टमेंट का उसको आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल जो है वो आप अचीव कर पाओ और रिस्क भी मैनेज कर पाओ। द की टू सक्सेसफुल पोर्टफोलियो फॉर्मेशन इज टू इन्वेस्ट इन ए वैरायटी ऑफ एसेट क्लासेस एंड टू इंश्योर दैट पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड। कहने का मतलब आपको सही से समझाता हूँ इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, कि जैसे कि बहुत लोग हैं एक ही चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अगर वो गया तो पूरा डूबेगा। अगर आप थोड़े थोड़े अमाउंट हर एक डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क उसमें कम हो जाएगा, बिकॉज सबके सब तो नहीं डूबेंगे, तो वहाँ पे आपके रिस्क जो है कम हो जाते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि डाइवर्स एसेट्स में आपको वैरायटी ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करना है और पोर्टफोलियो जो है डाइवर्स हो जाएगा उससे एंड रिस्क का रिड्यूस कम हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट है गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? गोल्ड बॉन्ड रेफर्स टू गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड दैट इज लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ गोल्ड। The bond provides investor with exposure to price of gold without having to purchase physical gold. Gold bond offers several benefits such as regular interest payments, capital appreciation and tax benefits. उसके बाद है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट क्या होता है? रेफर्स टू प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड, बिल्डिंग, हाउस। सबको पता है रियल एस्टेट कहने का मतलब जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जो भी है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो गया। इट कैन प्रोवाइड स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम थ्रू द रेंटल इनकम। जैसे कि किसी के पास प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग्स है, वो रेंट पे लगा दे रहा है तो उसके पास बिल्कुल रेगुलर इनकम आ रहा है उस रेंट के थ्रू। या फिर बहुत चीज़ें हैं ऐसे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट कैन प्रोवाइड रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम थ्रू रेंट एंड एप्रिसिएशन इन प्रॉपर्टी वैल्यू ओवर टाइम, ठीक है। अब आता है इन्वेस्टमेंट इन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? जो नया प्रोजेक्ट होता है जिसको बिल्कुल न्यू स्क्रैच से स्टार्ट किया जाता है, उसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो वो ग्रीनफील्ड हो गया। ब्राउन फील्ड होता है जैसे कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पहले से ही है, अगर उसके अपग्रेड करना है या फिर रिनोवेट करना है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में आते हैं, ठीक है। अब आता है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं डेब्ट सिक्योरिटीज होते हैं दैट पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर अ सेट ऑफ पीरियड। इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट कैन प्रोवाइड इन्वेस्टर विद रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम एंड कैन हेल्प टू मैनेज रिस्क इन अ पोर्टफोलियो, ठीक है। Financial derivatives and commodity market in India. Financial derivatives are financial instruments that derive their value from an underlying assets. Commodity markets in India offer investors exposure to various commodities such as gold, silver, crude oil, etc. etc. इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पे जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट चीज़ें जाती हैं और रिस्क पोर्टफोलियो भी बनता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स जो है, म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स पूल मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन वैरायटी ऑफ एसेट्स क्लासेस। ये भी क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड जो है डिफरेंट इन्वेस्टर्स से मनी लेकर के वैरायटी ऑफ एसेट्स में ये इन्वेस्ट करती है और इसमें आप कर सकते हो। इसमें स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट और बहुत डाइवर्स पोर्टफोलियो एसेट्स होते हैं इसमें, ठीक है। आपने काफ़ी एड्स देखे होंगे म्यूचुअल फंड्स के। और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल मार्केट का, वहाँ पे आप डिफरेंट बाहर के इंटरनेशनल मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और वहाँ पे आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो, ठीक है। करेंसी डेरिवेटिव्स एंड डिजिटल करेंसी। करेंसी डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट अलाउ इन्वेस्टर्स टू हेज अगेंस्ट द करेंसी रिस्क। Digital currency, also known as cryptocurrency, is a form of currency that is created and managed using encryption techniques. Investing in currency derivatives and digital currency can provide investor with a new asset class with the potential of high return, but they also come with high risk. अभी अभी एक मतलब हाल फिलहाल 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा, 1 साल पहले आई थिंक क्रिप्टो करेंसी बहुत बहुत तेज़ी से फैला था। बिटकॉइन जो आपको पता ही होगा, काफ़ी पैसे बनाए थे लोगों ने, तो बट इसमें हाई रिस्क भी है, बहुत लोगों के पैसे डूबे भी थे इसमें, ठीक है। अब आता है पर्सनल टैक्स प्लानिंग यूनिट। तो पर्सनल टैक्स में क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग योर टैक्स लायबिलिटी। अब अपने टैक्स को कैसे कम कर सकते हो? बाय यूजिंग वेराइटी ऑफ टैक्स स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स, ठीक है। टैक्स के एक स्ट्रेटजी और टेक्निक्स के थ्रू आप बहुत सारे ऐसे टैक्स को कम कर सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स सिस्टम इन योर कंट्री। आपको अपने कंट्री के टैक्स सिस्टम का पता होना चाहिए, तभी आप इस स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते अपने टैक्स को कम कर सकते हो, ठीक है। इंक्लूडिंग द वेरियस टैक्स लॉज, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस एंड क्रेडिट्स, ठीक है। टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी हेल्प यू मिनिमाइज योर टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग टाइमिंग और इनकम रिडक्शन। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप अपने, अगर आपको अपने टैक्स स्ट्रक्चर का पता है, टैक्स के बारे में नॉलेज है, तो आप उससे अपने जो भी एक्स्ट्रा आप टैक्स वगैरह पे कर रहे हो या फिर जो भी चीज़ें नहीं पता होने के कारण आप दिए जा रहे हो उससे बच सकते हो और आप अपने टैक्स को कम भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ टैक्स के पॉलिसीज के बारे में, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग टैक्स लॉज। टैक्स के लॉज को समझना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट स्टेप इन पर्सनल टैक्स प्लानिंग इज टू अंडरस्टैंड द टैक्स लॉज एप्लीकेबल इन योर कंट्री और रीजन। दिस इंक्लूड्स द अंडरस्टैंडिंग टैक्स रेट्स, टैक्स डिडक्शंस, एग्जम्पशंस एंड टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। क्लियर है? नेक्स्ट है मैक्सिमाइजिंग डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस।
Tax deductions and exemptions are essential part of personal tax planning. This can include expenses related to healthcare, education, charitable donations. By maximizing these deductions and exemptions, individual can lower their taxable income and reduce their tax liability. ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आप जैसे कि चैरिटी में दे करके, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में करके एक्सपेंस आप अपने टैक्स को काफ़ी कम कर सकते हो. ठीक है, ये सब बहुत डीप और भी मतलब एक्सप्लेन करने वाले टॉपिक्स है, बट अभी फिलहाल हम इतना ही जानना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है. Third है utilizing tax credits. Tax credits are incentives provided by the government to encourage certain behaviors of investments. Example of tax credit include the child tax credit, education tax credit. जो भी चीज़ें हैं बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट देती है. ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए तो वो सब भी जानना जरूरी है आपको. टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन जो है ये देख लो आप 22-23 का डेटा के हिसाब से, जिसका किसी भी इंडिविजुअल अगर 2.5 लाख से कम इनकम है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना होता है. 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम है तो 5% टैक्स देना होगा. 5 लाख से 7.5 लाख है तो 10%. इसी तरह सो ऑन देख सकते हो. अगर 15 लाख से ज़्यादा इनकम है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा आपको. ओके, अब आता है स्कोप ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग. तो पर्सनल टैक्स प्लानिंग के क्या स्कोप है देखा जाए. पर्सनल टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज that individuals can use to minimize their tax liabilities. Some common tax planning strategies include maximizing deductions and exemptions, utilizing tax credits, investing in tax advantage accounts, time in income and expenses, and retirement planning. ठीक है, exemptions and deductions available to individuals. Individuals are eligible for several exemptions and deductions under different heads of income and gross total income. Some of the popular exemptions and deductions available in the individuals as follows. जैसे कि अंडर सेक्शन ऑफ 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इंडिविजुअल्स कैन क्लेम डिडक्शंस अप टू 1.5 लाख फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम. इन सब में आप इन्वेस्ट करके आप बहुत सारे टैक्स को कम कर सकते हो. ठीक है, सेक्शन 80D जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो ये बोलता है कि इंडिविजुअल्स कैन क्लेम डिडक्शंस फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमाइसेस पेड फॉर सेल्फ डिपेंडेंस. ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप, हेल्थ वाला इंश्योरेंस वाले लेकर के आप उसमें कुछ कम कर सकते हो टैक्स अपना. ठीक है, 80E सेक्शन जो बोलता है इनकम टैक्स एक्ट का कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो टैक्स कम करा सकते हैं फॉर द इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन्स टेकन फॉर हायर एजुकेशन. ठीक है, इसमें भी कम हो जाता है. अंडर द सेक्शन 80TTA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इंडिविजुअल्स कैन क्लेम डिडक्शंस फॉर द इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग्स अकाउंट अप टू मैक्सिमम 10,000 पर ईयर. अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन्स. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जाननी है. ठीक है, सिलेबस में भी आपकी चीज़ें बिल्कुल सिलेबस वाली हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं यहाँ पे रखा गया, सब सिलेबस वाली हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव है. नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस बट फॉर योर लाइफ एंड गुड लिविंग और इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. ठीक है, अब यहाँ पे कंपेरिजन ऑफ बेनिफिट्स, स्पेशल प्रोविजन कुछ है, वो सब चीज़ें देख सकते हो आप. जो भी सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बजट 2020 ऑफर्स एन ऑप्शनल लोअर टैक्स रेट टू इंडिविजुअल्स हु आर विलिंग टू फॉरगो सर्टेन एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस. ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे टैक्स से राहत मिला है बहुत लोगों को. ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स एवेशन. टैक्स अवॉइडेंस इज द लीगल वे ऑफ मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटीज बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटी. देखिए, बहुत सारे ऐसे लीगल तरीके हैं जिससे कि आप टैक्स को अवॉइड कर सकते हो, टैक्स को कम कर सकते हो. ठीक है, ऑन द अदर हैंड टैक्स इवेशन इज इलीगल. टैक्स इवेशन, देखो टैक्स अवॉइडेंस वो लीगल तरीका है, लेकिन टैक्स इवेशन जो है वो इलीगल है. डेट इन्वॉल्व्स डेलिबरेटली कॉन्सीलिंग इनकम. मतलब अगर आप छुपा रहे हो अपने इनकम को, टैक्स नहीं भर रहे हो, तो वो टैक्स इवेशन में आ गया, वो इलीगल चीज़ है. फिर वहाँ पे आपको भाई जेल हो सकता है और फाइन लग सकता है. लेकिन अगर आप अपनी इनकम सही सही दिखा रहे हो, बट वहाँ पे आपने लॉज को पता करके, लॉ को जान करके, कहाँ आप इन्वेस्ट करके, कैसे उस लॉ को इस्तेमाल करके आप अपने इनकम को सही सही दिखा रहे हो, बट उसमें भी आप अपने टैक्स को कम करा सकते हो लीगल तरीके से. बिकॉज उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान है, ऐसे ऐसे स्कीम्स है कि यहाँ यहाँ चीज़ें होंगी तो ऐसे ऐसे होगा, तो वो सब करके आप टैक्स काफ़ी बचा सकते हो. लेकिन अगर आप भाई इनकम तो बहुत अच्छे से आप कमा रहे हो, बट आप उसको छुपा रहे हो, तो भाई आप जब पकड़े जाओगे तो ईडी जब आपको पकड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारेगा, तो फिर भाई जेल भी हो सकती है. ठीक है, जैसे कि आपने न्यूज़ में बराबर देखा होगा. अब आता है इंश्योरेंस प्लानिंग यूनिट. तो इंश्योरेंस प्लानिंग में 5th यूनिट है या फिर 4th यूनिट है. तो अब यहाँ पे इंश्योरेंस प्लानिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिस्क एंड सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस पॉलिसीज टू मिटिगेट दोज रिस्क. कहने का मतलब जैसे कि हमारे लाइफ में बहुत सारी रिस्क होती हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट जो है पॉलिसी को लेकर के हम उस रिस्क से बच सकते हैं. जैसे कि द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंश्योरेंस प्लानिंग इज टू protect individuals and their family from financial loss due to unforeseen events such as illness, disability और death. जैसे कि हम अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस लेने का कि आपका जो फाइनेंशियल लॉस हो वो कम हो सके, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस जैसे कि इलनेस हो गया, डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें अचानक एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं. तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा. अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है तो आपको पूरे पैसे भरने पड़ेंगे. लेकिन इंश्योरेंस करा रखा है
तो आपके पैसे बच जाएंगे। तो ये सब इसीलिए ये इंश्योरेंस जो है मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पैसे बच जाए लोगों के, ठीक है। Facts to consider. When selecting insurance policies, individuals should consider various factors such as their current and future needs, their budget and their policy features including the premium, coverage and benefits. बहुत ध्यान से चुनना चाहिए इंश्योरेंस, बिकॉज आजकल के टाइम पे जो इंश्योरेंस कंपनी है काफ़ी ज़्यादा हैं। आपने टीवी पे भर भर के ऐड देखे होंगे कि इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत सावधानी से, बिकॉज इंश्योरेंस वाले चूना भी लगाते हैं, या फिर आपको मतलब आपको जो जरूरत है वही आपको इंश्योरेंस लेना है। फालतू के इंश्योरेंस में पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, बिकॉज आपको वही इंश्योरेंस लेना है जो बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है, आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बहुत जरूरी हैं। उन्हीं इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम कराओगे, जो भी कराओगे इंश्योरेंस लोगे। अदरवाइज ऐसे फालतू का आप सारा इंश्योरेंस नहीं कर सकते। आई मीन वो कराओगे तो आपको एक्स्ट्रा मतलब पैसे जाएंगे और उससे आपको कुछ हेल्प होने वाला है नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि जो इंश्योरेंस लेते समय बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए, पॉलिसीज को बहुत ध्यान से पढ़ के बहुत मतलब सही से वो चीज़ें कवर करनी चाहिए, क्या क्या आपका नीड है, क्या बजट है, क्या सिचुएशन है, सबको देख करके चूज करना चाहिए। इट इज एसेंशियल टू रिव्यू इंश्योरेंस पॉलिसी periodically to ensure that they continue to meet the policy holder needs and to make any necessary changes to the policies. Okay, बहुत ध्यान से आपको पॉलिसी भी पढ़ना चाहिए। इंश्योरेंस के नीड क्या है मैंने बता ही दिया है, तो फिर इसको दोबारा से पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अभी आप पीडीएफ में पढ़ लोगे अच्छे से। अब हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द पॉलिसी होल्डर फैमिली इन केस ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स अनटाइमली डेथ। अगर अनटाइमली डेथ हो गया एक्सीडेंट में या फिर कोई भी चीज़ में, तो अनटाइमली डेथ होता है तो उसकी फैमिली को ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। द लंप सम अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंसर कैन हेल्प द फैमिली मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन सच एज mortgage payments, educational expenses, daily expenses, etc., etc. Life expenses. Life insurance is especially important for individuals who have dependent, such as children, elderly parents, or spouse who rely on the income. कहने का मतलब लाइफ इंश्योरेंस जो है इसमें क्या होता है, आपको मैंने पढ़ दिया तो समझ में आ ही गया होगा। आप अनटाइमली डेथ से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगा आपको, जो आप, और ये किसके लिए होता है? जैसे कि डिपेंडेंट लोग हैं, जैसे कि अगर आप पे कुछ डिपेंडेंट आपके चिल्ड्रन हैं, आपके एल्डरली पेरेंट है, आपकी स्पाउस है, तो फिर आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए जिससे कि अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हो एंड कुछ ऐसे अनवांटेड इंसिडेंट्स या फिर ऐसी चीज़ों से मतलब वो आपको हेल्प करेगा। अगर ऐसा मतलब ऐसे सिचुएशन आ जा रहे हैं तो इसमें आपको हेल्प करता है, ठीक है। आई मीन आपके फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है वो। आई होप आप समझ गए होगे जो मैं बोलना चाह रहा था। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द पॉलिसी होल्डर इन केस ऑफ इलनेस और इंजरी। मेडिकल एक्सपेंसेस कैन बी हाई एंड हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस कैन हेल्प रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पॉलिसी होल्डर एंड द फैमिली। सबको पता है कि जो इलाज है बहुत महंगा होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। तो अगर आप किसी भी कारण से बीमार पड़ रहे हो या फिर एक्सीडेंटल कुछ ऐसा हो जा रहा है जिससे कि आपकी इंजरी हो जा रही है, बहुत एक्सपेंस उसमें आएगा, तो उस टाइम पर अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो आपका वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा एंड आपको वो एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्थ इंश्योरेंस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव क्रोनिक इलनेस और फैमिली हिस्ट्री फॉर मेडिकल कंडीशन। तो हेल्थ इंश्योरेंस उसी को लेना चाहिए जिसकी फैमिली में कुछ ऐसे मतलब हिस्ट्री रही है कि कुछ ऐसा होता ही होता है, कुछ डिजीज होते ही होते हैं, या फिर क्रोनिक डिजीज, इलनेस या फिर ऐसी चीज़ें हैं, तो उन्हें तो हेल्थ इंश्योरेंस ही लेना चाहिए जिससे कि वो बच जाएंगे अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर से। एंड ऐसे भी लोगों को ले लेना चाहिए जिससे हेल्थ इंश्योरेंस आई मीन और मतलब जो मतलब इल हैं या फिर ऐसे लोग हैं, ठीक है। बाकी आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा था। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होता है? प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द पॉलिसी होल्डर्स प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डैमेज और लॉस ड्यू टू अनफोर्सिन इवेंट्स सच एज थेफ्ट, फायर और नेचुरल डिजास्टर। जैसे कि आपके पास अगर प्रॉपर्टी है, आपके पास घर है, तो आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले सकते हो जिससे कि आपको घर भूकंप में अगर गिर जाता है तो उसमें हेल्प हो जाएगी, या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है या फिर आग लग जाती है या फिर चोरी हो जाता है, तो उस केस में क्या है वो आपकी एक्स्ट्रा मतलब जो भी इंश्योरेंस आप लिए रहोगे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तो वहाँ पे आपका जो है एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा, वहाँ से आपको इंश्योरेंस के थ्रू सारी चीज़ें फिर आपको मिल जाएंगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर होम ओनर्स हु हैव इन्वेस्टेड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन द प्रॉपर्टी। मतलब आपने बहुत अच्छा घर बना लिया है, बहुत सही सी चीज़ें कर रखी हैं, तो भाई आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले ही लेनी चाहिए। बिकॉज आजकल के टाइम पे आप देख ही रहे हो नेचुरल डिजास्टर्स आते ही रहते हैं, थेफ्ट, फायर, जो भी चीज़ें हैं ऐसी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस से बचने के लिए, और ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो भाई अपने इतने पैसे लगा के घर बनाए हैं तो बेटर है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले ली जाए जिससे कि आप रिलैक्स हो सके कि हाँ भाई अगर कुछ ऐसा होता भी है खुदा ना खास कर, तो भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, कवर अप हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब आता है क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द पॉलिसी होल्डर्स फैमिली इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स डेथ। This type of insurance is usually taken out in conjunction with a loan or mortgage to the insurance that the debt is paid off in the case of borrower dies before the loan is fully repaid, ठीक है। Credit life insurance is especially important for individuals who have significant debt and do not want to burden their family with the in case of their death। अगर आपके पास बहुत कर्ज है और आप नहीं चाहते हो कि आपकी फैमिली पर इसका कोई बोझ पड़े, तो आप
क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस ले लो, और आप उससे क्या होगा कि जब तक आप जिंदा रहोगे, आई मीन तो आप उस मतलब सर्टेन अमाउंट आप पे करोगे इंश्योरेंस के लिए, एंड फिर अगर आपकी डेथ हो जा रही है तो फिर वो लोन जो है वो कंपनी जो भी इंश्योरेंस है वो वाले दे देंगे, आपकी फैमिली पर उस लोन का कोई आई मीन प्रेशर नहीं आएगा, वो कंपनी लोन देगी, ठीक है, जो जिसने अपने इंश्योरेंस कराया है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर आता है प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स इन केस दे आर through negligence, errors, or omissions in the professional capacity. This type of insurance is especially important for professionals such as doctors, lawyers, and accountants who have high risk of being sued due to the nature of their work. अब जैसे कि कोई डॉक्टर है, अगर भाई वो इंश्योरेंस नहीं लिया होगा तो भाई अगर वो किसी फंसता है, ऐसे कि डॉक्टर है, कोई गलत कर दिया ऑपरेशन या फिर कुछ ऐसे छोटे मोटे एरर हो गए, ऐसी चीज़ें हो गई, उस केस में भाई वो अगर प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस ले लेगा तो उसके जो भी अगर क्लेम आता है तो वो उसमें वो जो इंश्योरेंस वाले हैं वो पैसा दे देंगे, आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो इससे आपका लॉस जो है बच जाएगा, ठीक है। समझ गए कहने का मतलब, ठीक है। जैसे कि फिर से समझा देता हूँ, कोई डॉक्टर है या फिर मान लीजिए कोई इंजीनियर है या फिर कोई ऐसे प्रोफेशनल लॉयर हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है गलती जिससे कि उनके ऊपर क्लेम आ गया है कुछ 1 मिलियन रुपीज़ का, तो फिर वो अगर उन्होंने ये प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस करा रखा है तो यहाँ पे उन्हें 1 मिलियन नहीं देना पड़ेगा, वो 1 मिलियन जो है इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, बिकॉज उन्होंने इंश्योरेंस करा दिया था। और ये प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस है जिसमें प्रोफेशन में जो भी एरर और इसके चक्कर में जो कुछ होता है तो वो पे करती है कंपनी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। अब आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लानिंग, ये 5th यूनिट है। रिटायरमेंट की बात करेंगे हम लोग। रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ऑफ फाइनेंशियल personal finance that involves preparing for financial security during retirement. It involves determining the income and expenses that an individual or couple is likely to have during the retirement and creating a plan to ensure their financial needs are met during। जैसे कि आप रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग जो है बहुत जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद क्या क्या होगा, इसका जरूरत क्या है, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी भाई। रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लानिंग इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव financially secure retirement involve the planning and investing in retirement savings plans to accumulate sufficient funds to meet post retirement expenses। कहने का मतलब ये है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आप रिटायरमेंट के बाद आपको ये इंश्योर है कि आप अपने अच्छा लाइफ स्पेंड कर पाओ, आपको एक सिक्योर्ड रिटायरमेंट हो सके, आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप करके ये प्लानिंग करके आप इंश्योर हो जाओगे कि रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा, आपको इतने पैसे मिलेंगे जिससे कि आप अच्छा लाइफ स्टाइल स्पेंड कर पाओगे, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, तो कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। रिटायरमेंट प्लानिंग गोल्स क्या होते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग गोल इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स फॉर रिटायरमेंट एंड डेवलपिंग ए प्लान टू अचीव देम। दिस इन्वॉल्व्स द estimating the total cost of living during retirement, including housing, health, food, travel, and other expenses, and developing a savings plan to meet those needs. Some of the common retirement plans goals include। अब यहाँ पे जो गोल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि आप रिटायरमेंट के बाद तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं, बिकॉज आपने तो जॉब से रिटायर हो रहे हो, तो उससे पहले आप ये प्लानिंग कर लोगे, तो आपने जो भी सेविंग उसमें उसको इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये एश्योर्ड रहेगा कि आप रिटायरमेंट के बाद अच्छे से रह पाओगे। फूड, हाउसिंग, जो भी चीज़ें हैं वो खर्च जो है वो आपका बैलेंस्ड हो, उसमें कोई दिक्कत ना आपको आए रहने में, ठीक है। ऑल्दो आपको पेंशन मिलेंगे वो तो बात की बात है, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे ही, बट ये प्लानिंग तो पहले ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है। अब यहाँ पे प्लान्स में होता है एक्यूमुलेटिंग सफिशिएंट रिटायरमेंट सेविंग्स टू मेंटेन ए डिजायर्ड लाइफ स्टाइल। मतलब इस प्लान्स में क्या क्या शामिल है, रिटायरमेंट वाले प्लान में ये चीज़ शामिल है कि आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल, जो भी आप डिजायर्ड लाइफ स्टाइल है रिटायरमेंट के बाद आप जी सको, वो आती है आपके गोल्स में। दूसरा आप ये गोल्स है कि इंश्योरिंग दैट रिटायरमेंट सेविंग्स लास्ट थ्रू आउट द रिटायरमेंट, मैनेजिंग रिटायरमेंट इनकम टैक्स एफिशिएंटली, प्रोटेक्टिंग एसेट्स एंड इनकम इन रिटायरमेंट, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, क्या प्रोसेस है रिटायरमेंट प्लानिंग करने का, ठीक। रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, 6 स्टेप्स हैं टोटल। पहला स्टेप है डिटरमाइन रिटायरमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो आपको क्या गोल है आपका रिटायरमेंट और क्या एग्जैक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव्स है आपका, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा कि एस्टिमेटिंग द रिटायरमेंट एक्सपेंसेस एंड इनकम नीड्स, क्या आपको ये डिटरमाइन करना है कि क्या आपकी इनकम नीड्स हैं और क्या एक्सपेंडिचर होने वाला है, आपको वो सब आपको कैलकुलेट करना है। तीसरा है कि इवेल्युएटिंग करेंट रिटायरमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या आपके एसेट्स और लायबिलिटीज हैं रिटायरमेंट के टाइम के, वो आपको एनालाइज करना है। डेवलपिंग ए सेविंग्स प्लान टू मीट रिटायरमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए आपको एक सेविंग प्लान भी बनाना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज टू अचीव द रिटायरमेंट गोल्स, आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी बनानी है जिसके कारण आप अपने रिटायरमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हो। 6th है मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग द रिटायरमेंट प्लान एज नेसेसरी, तो सिंपल सी बात है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको।
अब पेंशन प्लान अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में दो टाइप के पेंशन प्लान है। पहले डिफाइंड बेनिफिट डीबी पेंशन प्लान, इसमें क्या होता है जो गारंटेड रिटायरमेंट बेनिफिट होता है वो एम्प्लॉयर को मिलता है सैलरी से। और दूसरा होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज को मतलब खुद भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है अपनी सैलरी से, तो फिर वो बाद में मिलता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं भारत में आपको। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, अटल पेंशन योजना एपीवाई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एससीएसएस, एन्यूटी प्लान्स फॉर इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सारे बहुत सारे स्कीम्स हैं पेंशन जो अवेलेबल हैं भारत में, जिससे कि कोई भी है इसका मतलब ओल्ड एज जो है वो फायदा उठा सकते हैं। अब आता है रिवर्स मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। ठीक है, तो रिवर्स मॉर्गेज होता है इज ए टाइप ऑफ लोन दैट अलाउ द होम ओनर्स टू कन्वर्ट अ पोर्शन ऑफ देयर इक्विटी इन देयर होम्स इनटू कैश विदाउट सेलिंग द प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी बेचे बिना आप सर्टेन इक्विटी अपने घर का जो है आप वो गिरवी रख सकते हो और उससे आप पैसे ले सकते हो। द लोन इज टिपिकली रीपेड व्हेन द होम ओनर डाइज, sells the property or moves out. Reverse mortgages are often used by retirees as a source of income during retirement. Clear है? अब आता है ई स्टेट प्लानिंग, लास्ट टॉपिक है। ई स्टेट प्लानिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअल्स एसेट्स एंड liabilities after the death. The primary goal of estate planning is to ensure that the individual's assets are distributed according to their wishes, and the process carried out in tax efficient manner. Estate planning may involve creating a will, establishing trusts, designating beneficiaries for retirement accounts and insurance policies, and taking steps to minimize the estate tax and ensure the smooth transfer of assets to a heirs and beneficiaries. तो समझ गए कहने का मतलब बंटवारा या फिर जो भी चीज़ें हैं कि भाई अगर सामने वाला इसका ये प्रॉपर्टी है वो डाई कर जाएगा मतलब मर जाएगा, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, क्या चीज़ें हैं, क्या ये सब किसको ट्रांसफर होगा, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये सब के लिए ये भी प्लानिंग होती है। तो ये भी आप जान लो, इस चीज़ की भी प्लानिंग होती है। तो ये सब प्लानिंग करके इसके हिसाब से चीज़ें जो है क्लियर करनी पड़ती है और ये इन्वॉल्व होते हैं स्टेप्स जो प्रोसेस हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। अभी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ओवरऑल आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा ये सब चीज़ें का। मैंने पूरा सिलेबस को थ्रू आउट कवर किया है और अभी 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने इसको कवर कर लिया पूरा सिलेबस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप और इस नोट्स को अच्छे से पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने इस एग्जाम में। एंड आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम से पहले तक पहुंच जाए, जिससे कि आप इसको देख करके फायदा उठाओ एंड हमारा मेहनत भी सफल हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल जो आप जहाँ पे देख रहे हो इसे सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।